तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which consists of the four main units: input devices, or better we can say input unit, secondly output unit, third the central processing unit, and fourth one is the memory unit. These are the main four units which a modern computer system has. Not even the modern computer system, but since a computers era, from the very beginning, these were the main components of the computer. Now, as we know, CPU processes the data and program, and they will be entered in the computer memory, and finally the data will be inserted inside the CPU from the mechanism established inside the computer. So CPU processes the data and instructions, and after processing, the result will be displayed or will be available to the user after CPU processed the result for the data processing. Okay, so this diagram dictates some sectional view of some of the part of the computer system. So here CPU interacts with the main memory. In this way, CPU looks for the main memory, for the address of the main memory, and here the CPU and main memory communicates in this fashion of two-way communication. Two-way communication in the sense data or instructions can be communicated between the main memory and CPU in two ways. That means they can be from the main memory to CPU, and after processing, the CPU sends back the result to main memory. Okay, and from main memory, if the user wants, the result can be stored to the secondary memory, depending on the program also. So, but the CPU looks for the main memory for the address, so communication is one way. Now, input-output system, recently, soon, we are going to discuss it, input-output system or subsystem, which basically interacts with the CPU through the memory in microcomputers. But in very advanced computers, the communication may be direct if the IO subsystem has the small processing power. Okay, so proceeding further. Okay, communication between the peripheral devices and the CPU. So, as we know, the communication between the different peripheral devices and the CPU or memory. CPU communicates with the memory, and in microcomputers, CPU communicates with the memory, and memory will be interacted with the IO devices. But as I told recently, if IO devices or memory will be having some processing power, as it will be the case in the DMA or input-output processor. So these peripheral devices can communicate directly with the CPU in case the devices will be having the processing power. Okay. So if devices are not having the processing power, so CPU communicates with the memory directly, and the peripheral devices will be communicating with the memory. Okay. So when communicating with the peripheral devices with the CPU, we have main four critical points, because the different peripheral devices, including the CPU too, have the
following anomalies, like they will be different in their functioning. So we can say functional difference, operational speed and transfer rate. Mostly or all of the device are having their different transfer rate because of the different operational speed. Third one is the data format. The data format for storing or processing corresponding to different devices is different, varies from device to device. And lastly, the variety of peripherals. So they are again different or varying in different functioning, the different peripheral devices. So we are now discussing on these 4 points in some more details, taking them one by one. So first one, functional difference. So actually the peripheral devices are either the electromechanical or electromagnetic devices. Electromechanical in the sense, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इन द सेंस कि जो डिवाइसेस हैं, जैसे हो सकता है सपोज करो कि सीडी ड्राइव, तो इट इज हैविंग ए मैकेनिकल पार्ट फॉर रोटेटिंग द डिस्क. हार्ड डिस्क इज हैविंग द मैकेनिकल पार्ट फॉर रोटेटिंग द अगेन द रोटेटिंग फॉर डिस्क इनसाइड द हार्ड डिस्क, एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इनसाइड दैट इज कि उसकी जो सर्किट है, इंटरफेस सर्किट. Soon we will discuss at the end of the lecture, middle of the lecture, कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, वो मैकेनिकल कंपोनेंट के साथ भी एक्चुअली फंक्शनिंग करते हैं. So these are called as the electromechanical or electromagnetic devices. Okay. So because of this, कि उनका जो ऑपरेशन का तरीका है, मैनर ऑफ ऑपरेशन, वो सीपीयू से एंटायरली डिफरेंट है, मेमोरी से भी डिफरेंट है. और जबकि सीपीयू और मेन मेमोरी, दे आर प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सीपीयू एंड मेन मेमोरी, दे आर प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल डिफरेंस, इस फंक्शनल डिफरेंस के कारण एक सिग्नल का कन्वर्जन रिक्वायर्ड होता है. Okay, so the conclusion is that because of this functional difference, the conversion of signal value may be required. Signal को convert करने के लिए एक mechanism की requirement होती है. अब दूसरे point पर आते हैं हम, operational speed and transfer rate. तो जितनी भी devices हैं, सभी की अपनी operational speed different है, and because of these operational speeds, उनके ट्रांसफर रेट भी अलग अलग है. जब ऑपरेशनल स्पीड अलग अलग होगी तो ट्रांसफर रेट भी अलग अलग होंगे. सीपीयू हमारा क्या है कि एक्सट्रीमली फास्ट डिवाइसेस है. जितने भी कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम में होते हैं, तो एज वी नो कि सीपीयू सबसे ज्यादा फास्ट होता है. और फास्ट होता है तो ये सबसे ज्यादा स्पीड पे हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. आईओ डिवाइस हो या मेमोरी हो, तो सीपीयू की स्पीड से ऑपरेट कर ही नहीं सकते हैं. तो सीपीयू का जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज्यादा है पेरिफेरल डिवाइसेस से एंड मेमोरी से. तो बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशनल स्पीड एंड ट्रांसफर रेट डिफरेंस, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में भी later we will see कि what is the synchronization mechanism. पहला हमने देखा था functional difference. तो because of the functional difference, conversion of signal values की requirement है. दूसरा, operational speed और data transfer rate के variation के कारण एक synchronization mechanism की भी requirement है. तीसरे पॉइंट पर हाँ, एक चीज और है इसमें, source and destination. तो सोर्स और डेस्टिनेशन की बात जब हम करते हैं, तो जो यूनिट जो है डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसमिटिंग यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज द सोर्स, और रिसीव कर रहा है वो डेस्टिनेशन है.
जैसे सीपीयू है हमारा, तो अगर कोई आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है या राइट ऑपरेशन हो रहा है, सीपीयू ट्रांसफर कर रहा है एड्रेस और द डेटा। जब भी आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है तो सीपीयू के अंदर प्रोसेस होकर डेटा आउटपुट डिवाइस पर जा रहा है। तो इस मोमेंट पर सीपीयू हमारा क्या होगा, सोर्स। और जब इनपुट ऑपरेशन हो रहा है, कोई डिवाइस इनपुट कर रही मेमोरी में, मेमोरी से सीपीयू में डेटा आ रहा है, तो एट दैट टाइम सीपीयू इज वर्किंग लाइक द डेस्टिनेशन यूनिट। Okay, so I think idea will be clear to you. So आगे चलते हैं, थर्ड डेटा फॉर्मेट। तो डेटा का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग है। तो डेटा के कोड या डेटा फॉर्मेट अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस में अलग अलग। और फोर्थ पॉइंट है वैरायटी ऑफ पेरिफेरल्स। तो जितनी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसमें से अधिकांशतः आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो सभी पेरिफेरल डिवाइसेस का ऑपरेटिंग मोड जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है। तो इस कारण सभी डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाना आवश्यक है, जिससे कि वो दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस का ऑपरेशन को डिस्टर्ब ना करे। ओके, सो ये 4 पॉइंट हो गए। बिकॉज ऑफ दीज 4 पॉइंट्स वी विल डिस्कस द ऑन द थ्योरी, जो कि इन्हीं 4 पॉइंट के अराउंड हमारी इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईयू सब सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो आईयू सब सिस्टम क्या है? बेसिकली इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। मतलब इनपुट आउटपुट सब सिस्टम को कंप्लीट हमने एज ए सिस्टम बना लिया की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि इनपुट आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी इंटरफेस सर्किटरी करेस्पॉन्डिंग आईओ इंटरफेस, चैनल, डिवाइस कंट्रोलर। ठीक है, तो आईओ सब सिस्टम बेसिकली क्या है कि ये एक तरह से हम इसको इंटरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इंटरफेस जिससे कि कंप्यूटर हमारा बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन करता है। अब बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन कैसे करता है कंप्यूटर? आइदर थ्रू द इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस क्या करती है? बाहरी दुनिया की डेटा और प्रोग्राम्स को सीपीयू को प्रोवाइड कराती है कंप्यूटर मेमोरी के थ्रू। और आउटपुट जो यूनिट है वो सीपीयू के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है डेटा, उस डेटा को बाहरी दुनिया में भेजती है। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारा क्या करता है कि एफिशिएंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सीपीयू और बाहरी वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया के। क्योंकि बाहरी दुनिया में तो क्या, जैसे प्रिंटर है दैट इज आउटसाइड द सीपीयू, एवरीथिंग आउटसाइड द सीपीयू। तो सीपीयू या तो बाहरी दुनिया का मतलब ये है कि या तो मॉनिटर पर भेजेगा, प्रिंटर पर भेजेगा, स्पीकर पे डेटा भेजेगा, या बाहरी दुनिया से डेटा आ रहा है, माउस से कमांड आ रही है, कीबोर्ड से टेक्स्ट या कुछ टाइपिंग मैसेजेस आ रहे हैं वो सीपीयू को मिल रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम जो है हमारा, वो 2 पर्पस हमारा यहाँ सॉल्व करता है। पहला तो कि कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और जो ये कम्युनिकेशन है, रिलेटेड कम्युनिकेशन, उससे रिलेटेड डेटा है, उसको स्टोर करना। अब एज यूजुअल कि अगर कंप्यूटर हमारा बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करे तो उसका कोई यूजफुल पर्पस नहीं रह जाता। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा बाहरी दुनिया से, प्रोसेस करेगा, फिर आउटसाइड वर्ल्ड को फिर ट्रांसमिट कर देगा या ट्रांसफर करेगा मीनिंगफुल फॉर्म। दिस इज द पर्पस ऑफ द आईओ सब सिस्टम। तो आईओ सब सिस्टम बेसिकली क्या है? एक तरह से कि आईओ डिवाइसेस और कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस को इंक्लूड करके, क्लॉक डिवाइस एंड डिवाइस कंट्रोलर, इन सबको इंक्लूड करके जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द सीपीयू विद द आउटसाइड वर्ल्ड, वो सभी आईओ सब सिस्टम का पार्ट माने जाते हैं। दिस इज द मेन थिंग। ओके, तो अब हम बात करते हैं आईओ इंटरफेस एंड डिवाइस कंट्रोलर।
तो जो सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन है, अभी हमने डिस्कस किया कि बिकॉज ऑफ सम पॉइंट्स, सम सिचुएशन के आउटसाइड वर्ल्ड और सीपीयू का जो कम्युनिकेशन है, तो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उसके लिए हमारा इनपुट आउटपुट सब सिस्टम डिजाइन होता है। तो अब बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में हमारा स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट इंक्लूड किए जाते हैं किस किस के बीच में, पेरिफेरल डिवाइस और सीपीयू के बीच में, पेरिफेरल डिवाइस और सीपीयू के बीच में। तो सीपीयू से क्या है, प्रोसेसर बसेस निकलती हैं और वो बसेस हमारी मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। फिर मदरबोर्ड से कोई कनेक्शन आता है, वो हमारा पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करता है। तो इनके बीच कहीं ना कहीं एक जो है आईओ इंटरफेस हम प्रोवाइड करते हैं। इंटरफेस इन द सेंस कि आईओ डिवाइस से जो कम्युनिकेशन होगा वो आईओ इंटरफेस हार्डवेयर के फॉर्म में होगा। तो वो इंटरफेस हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा कि सीपीयू से कम्युनिकेट करने के लिए। अब इंटरफेस क्या क्या इंक्लूड करेगा, आईओ डिवाइस से जो डेटा आया वो सबसे पहले केबल्स या बसेस के थ्रू मदरबोर्ड में आया, मदरबोर्ड से वो मेन मेमोरी सर्किट में पहुंचा, बसेस के थ्रू मेन मेमोरी इज कनेक्टेड, मेन मेमोरी से सीपीयू में पहुंचा। तो ये बीच की लेयर है जो बसेस, मेमोरी और इंटरफेस, दैट इज द आईओ इंटरफेस। तो इसको हम बोलते हैं आईओ इंटरफेस यूनिट और आईओ चैनल और डेटा चैनल। तो जो ये आईओ डिवाइस और सीपीयू की कम्युनिकेशन की डिस्पैरिटी है, इसी को हमारा आईओ चैनल या डेटा चैनल फुलफिल, यानी जो गैप है उसको रिजॉल्व करता है, फुलफिल करता है। अब हम आईओ यूनिट कंपोनेंट्स, जो इनपुट आउटपुट यूनिट कंपोनेंट्स हैं, तो कोई भी इनपुट आउटपुट यूनिट है हमारा, उसके जो कंपोनेंट होते हैं, उसका जो मेन अगर स्ट्रक्चर देखो इनपुट आउटपुट यूनिट का, तो वो मेन स्ट्रक्चर में क्या है कि एक मैकेनिकल पार्ट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होगा। जैसे सपोज करो हार्ड डिस्क, तो उसमें जो स्पिंडल है, रोटेटिंग यूनिट है, वो मैकेनिकल कंपोनेंट है, और जो उसकी सर्किटरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। और दूसरा उसका जो कोटिंग है मैग्नेटिक मटेरियल की डिस्क पर, वो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट भी ये सपोर्ट करता है। इसी तरह अगर हम माउस की बात करें, तो माउस में जो स्क्रॉल वाला बटन है, दैट इज द मैकेनिकल पार्ट, स्क्रॉल बटन। और अंदर जो उसकी सर्किटरी है, वो वी कैन से द ऑप्टिकल पार्ट। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं, दे आर कॉम्बिनेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज द मैकेनिकल कंपोनेंट्स। कुछ डिवाइस की छोड़ के, जैसे सीपीयू है, वो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है। अगर हम मेन मेमोरी की बात करें, दैट इज आल्सो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें भी कोई मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है डिवाइस का, वो बेसिकली हमारा डिवाइस कंट्रोलर है, या सिंपल लैंग्वेज में हम उसको एडाप्टर भी बोल देते हैं कभी कभी। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द डिवाइस कंट्रोलर या एडाप्टर। उसका काम ये है कि वो उस पेरिफेरल डिवाइस की मैकेनिज्म को सुपरवाइज करता है। जो डिवाइस की मैकेनिज्म है, जो उसका टास्क है, फंक्शन है, उसको सुपरवाइज करता है। तो इन दोनों पोर्शंस को, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पोर्शंस को, हम सेपरेट कर सकते हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पोर्शंस को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आगे आते हैं, अब डिवाइस कंट्रोलर की बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि डिवाइस कंट्रोलर बेसिकली क्या है कि जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उसमें एक इंटरफेस जो एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस, बेसिकली दैट इज द डिवाइस कंट्रोलर। तो डिवाइस कंट्रोलर हमारा क्या है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है
processor and the peripheral device. Device controller generates or provides the interface between the processor and peripheral devices. तो हर एक डिवाइस कंट्रोलर उस पर्टिकुलर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उस पर्टिकुलर डिवाइस टाइप के लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मैंने बता दिया है कि डिवाइस कंट्रोलर क्या है। डिवाइस कंट्रोलर communicates with the IO bus of the computer. It provides a method for transferring information between internal storage and external IO devices. तो ये 10 से 30 सेकंड के लिए वेट करो, 20 सेकंड के लिए। I'll just come. ओके, तो आगे चलते हैं इसमें। अब ये कंप्यूटर सिस्टम का हमारा एक सिंपल स्कीमेटिक व्यूज है जिसमें CPU is there. CPU is communicating with the different devices. Basically, CPU is connected with the memory. अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, ओके, तो माइक्रो कंप्यूटर में तो CPU मेन मेमोरी से ही डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है। अदर काइंड के अगर हम एडवांस कंप्यूटर देखें तो अगर पेरिफेरल डिवाइसेस के पास प्रोसेसिंग पावर है, इट कैन कम्युनिकेट विद द CPU। एंड तो जैसे डिस्क है, अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क कंट्रोलर है। इंटरफेस सर्किटरी, प्रिंटर है तो उसकी अपनी इंटरफेस सर्किटरी है। टेप ड्राइव्स हैं तो टेप ड्राइव कंट्रोलर, तो इसी तरह मेमोरी है, मेमोरी कंट्रोलर। तो CPU communicates with the memory and rest of the devices will communicate with the memory in case of microcomputer. Okay, this is the system bus. तो आगे चलते हैं। डिवाइस कंट्रोलर के फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। तो बेसिकली इसके 6-7 फंक्शंस मैंने यहाँ डिक्टेट किए हुए हैं डिवाइस कंट्रोलर के। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट दीज फंक्शंस आर करेस्पॉन्डिंग टू डिवाइस कंट्रोलर। तो पहला तो ये है कि ये प्रोसेसर को लो लेवल डिटेल्स में जाने से रिलीव करता है, मतलब प्रोसेसर को उस डिवाइस के लो लेवल फंक्शंस में जाने की जरूरत नहीं है। लो लेवल डिटेल्स को अपने आप ये कलेक्ट करके उसका इंफॉर्मेशन CPU या मेमोरी को देता है डिवाइस कंट्रोलर। दूसरा ये है कि ये सिस्टम बस और IO डिवाइस के बीच इंटरफेस का काम करता है। क्योंकि IO डिवाइस है, उसके बाद कंट्रोलर है, फिर सिस्टम बस है जो कि मेमोरी से कनेक्ट है या CPU से भी कनेक्ट है। ठीक है, तो सिस्टम बस और डिवाइस के बीच में डिवाइस कंट्रोलर का काम है जो एक्चुअली कम्युनिकेट करेगा सिस्टम बस से। तीसरा है कि ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेस, हर एक डिवाइस का अपना एक इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है। डिवाइस कंसिस्ट ऑफ द electric conducting devices, capacitors and inductors, etc. for the voltage or current or charge उस डिवाइस के लिए। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल इंटरफेस के लिए जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी डिवाइस कंट्रोलर ही करेगा। और चौथा है कि जो ऑपरेशंस हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस की मैकेनिज्म करेस्पॉन्डिंग पेरिफेरल डिवाइस के,
उसको ये सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट जो टास्क है डिवाइस कंट्रोलर का वो ये है कि ये सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन लिंक को प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग द सिस्टम बसेस। नेक्स्ट जो है वो सिंक्रोनाइज द डेटा फ्लो। अलग अलग डिवाइस का अलग अलग डेटा ट्रांसफर रेट हो सकता है, तो इस डेटा ट्रांसफर रेट को सिंक्रोनाइज करने के लिए डिवाइस कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से ये ट्रांसफर बिटवीन द पेरिफेरल डिवाइस एंड सीपीयू के बीच भी सुपरवाइज करता है। अब कभी कभी पोर्ट का भी कंसेप्ट आता है एज ए डिवाइस कंट्रोलर। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी डिवाइस जो कनेक्ट होती है हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर से, वो हार्डवेयर इंटरफेस के थ्रू होती है, उसको हम पोर्ट बोल सकते हैं। ऐसे पोर्ट और डिवाइस कंट्रोलर कभी कभी एक ही सेंस में यूज होते हैं। तो पोर्ट बेसिकली क्या है कि सपोर्टिंग सर्किट है फॉर इंटरफेसिंग और कनेक्टिंग द डिवाइस टू द कंप्यूटर। ओके, तो कंट्रोलर कार्ड जो है उसमें एक्चुअली एक कनेक्टर होता है जिसमें हमारी जो केबल है डिवाइस के करस्पॉन्डिंग उसमें प्लग कर देते हैं। तो डिवाइस कंट्रोलर इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो अगर हम मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो वो डिवाइस कंट्रोलर उसमें क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट कार्ड के फॉर्म में होता है। ओके, तो जितने भी माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर्स हैं तो वो सिंगल बस मॉडल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। मतलब वो सिंगल बस कम्युनिकेशन मॉडल बिटवीन सीपीयू एंड कंट्रोलर यूज करते हैं। और जो लार्ज कंप्यूटर हैं, एडवांस कंप्यूटर हैं, जैसे मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, तो वो अलग अलग मॉडल यूज करते हैं। उसमें मल्टीपल बसेस होती हैं और स्पेशलाइज्ड आईओ चैनल्स या कंप्यूटर होते हैं। मतलब कि जो स्पेशलाइज्ड आईओ चैनल्स हैं उनके पास अलग से अपनी प्रोसेसिंग पावर होती है और अलग से जो प्रोसेसिंग पावर होती है उससे वो सीपीयू से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। डिवाइस कंट्रोलर एंड अटैच्ड डिवाइसेस। तो एक जो जनरल पर्पज हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो उसमें क्या है, जनरली एक सीपीयू होते हैं और बहुत सारे डिवाइस कंट्रोलर होते हैं जो कि एक कॉमन बस से कनेक्ट होते हैं। तो कंट्रोलर डिपेंडिंग ऑन द कंट्रोलर हमारे पास जो अटैच डिवाइसेस है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर हम बहुत डिटेल में जाएं तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI कंट्रोलर लोगों ने देखा होगा, हार्डवेयर लैब में देखा होगा, जब हमने उसमें मदरबोर्ड में देखा था कि डिफरेंट कंट्रोलर्स आर देयर, SCSI कंट्रोलर। तो इन सब में क्या है कि मोर देन वन डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड। तो ये लास्ट स्लाइड है। इसमें अगर हम डिफरेंट इंजीनियर्स को इंक्लूड करें तो उसके कंप्यूटर्स और उसके रिलेटेड फंक्शनिंग के बारे में क्या व्यू, उसको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो जो कंप्यूटर सिस्टम को है वो इस तरह से देखेगा इन टर्म्स ऑफ वायर्स, पावर सप्लाईज, मोटर और अदर फिजिकल कंपोनेंट्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अगर उसको अपने व्यूज में देखेगा तो चिप, buses or interfaces. Interface is the basically electronic component. So electronic unit will look towards the electromagnetic field on the disk and the wires, the chips, the circuitry, microprocessor. Okay, chips में सब कुछ आ जाएगा, किसी भी टाइप की चिप हो, very large in scale integrated circuit, ICs जो चिप में ही आ जाएगी। और प्रोग्रामर अपने हिसाब से जो इंटरफेस को प्रेजेंट करेगा, तो सॉफ्टवेयर कमांड्स, हार्डवेयर जो कमांड्स, सॉफ्टवेयर कमांड्स जो हार्डवेयर एक्सेप्ट करता है। तो
by this we have completed the today's lecture for the input output organization. अगर पूछना हो किसी को, कुछ जुड़े हैं कुछ लोग, ब्रजभान, गोपाल, तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं इसको क्लोज कर